ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान अमेरिका के साथ अगले राउंड की बातचीत में शामिल होने पर औपचारिक रूप से विचार करेगा। ईरान दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल होगा या फिर नहीं, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कौन सा मैसेज ईरान को देते हैं और साथ ही आगे अमेरिका का व्यवहार कैसा रहने वाला है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का मैसेज देकर ईरान पहुंचे हैं। ईरान में उन्होंने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत का दूसरा राउंड आज है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत का दूसरा राउंड। सीज फायर पर बात नहीं, ईरान पर प्रतिबंध की चेतावनी। मिडिल ईस्ट में बम बारूद का ये शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सीज फायर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन साफ साफ कह रहा है कि सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। इस बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरान जा पहुंचा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री से उसकी मुलाकात हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट यह है कि 21 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है, इसे आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने पुख्ता कर दिया है कि दूसरे राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। Would the talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. आसिम मुनीर भले ही ट्रंप के हरकारे बनकर तेहरान को राजी करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि होर्मुज में नाकेबंदी के बाद ईरान और भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका ने भी रुख कड़ा कर लिया है। अमेरिका ने सीज फायर आगे बढ़ाने की खबरों का खंडन कर दिया है। So I saw some reporting, again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The president mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the president's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. एक तरफ सीज फायर आगे न बढ़ाने की धमकी, दूसरी तरफ ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान पर अब जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो किसी बम के धमाके से भी ज्यादा नुकसान करेंगे। One of the what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. So we have pushed out to them the request that we want to freeze more funds of the leadership of the IRGC and any members of Iranian leadership. The other thing that we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know
that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में जिनपिंग से अपील की है कि ईरान को हथियार न दें। इस बीच मैरीन ट्रैफिक ट्रैकर्स के डेटा के मुताबिक अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद पिछले 24 घंटों के दौरान होर्मुज के रास्ते चीन, पाकिस्तान और ईरान के 20 टैंकर्स पास हुए हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी नजर में ईरान के साथ युद्ध का दी एंड हो गया है, बस फाइनल डील बाकी है। अब सबकी निगाहें राउंड 2 की बातचीत पर लगी हैं, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूरेनियम मिसाइल प्रोग्राम और होर्मुज पर क्या ईरान ट्रंप की शर्तें मान लेगा। बड़ी खबर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का एक्शन लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान के बिंट जबल में इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इलाके में कई इजरायली हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं जो कि घायल सैनिकों को ले जा रहे हैं। लेबनान के साथ सीज फायर से पहले इजरायल बिंट जबल पर अपना नियंत्रण हासिल करना चाहता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के नाम एक संबोधन में कहा कि इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रही है। बिंट जबल को दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की कैपिटल माना जाता है और इजरायल इस पर लगातार हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह की राजधानी को इजरायली फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी वक्त उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा।